I got this word early in the morning, I think yesterday, about spiritual blessings. तो सुबह मुझे वचन मिला इस विषय में आत्मिक आशीषों के विषय में। So we see in the book of Ephesians, chapter 1, verse 3. इफिसियों की किताब पहला अध्याय उसका तीसरा वचन। It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। So the wonderful thing is that we have to bless God because He has blessed us. बहुत ही अद्भुत बात यह है कि हमें परमेश्वर को आशीष देना है क्योंकि उन्होंने हमें आशीष दिया है इसलिए। And God, the Father of Jesus Christ, has individually blessed each one of us, all His children. और स्वर्गीय पिता जो यीशु मसीह के हैं, हम सभी को एक-एक करके बहुत सारी आशीषों से उन्होंने भरा है। And how has He blessed us? और उन्होंने हमें कैसे आशीष की है? It says He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से हमें भर दी है। So God is very interested to give us and has given us spiritual blessings. तो परमेश्वर बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और हमें उन्होंने दिया भी है सारी आत्मिक आशीषें। And that we get the spiritual blessings because of Jesus Christ. और हमें आत्मिक आशीषें मिलती है यीशु मसीह के कारण। And what are these spiritual blessings in Christ? और मसीह में ये आत्मिक आशीषें क्या है? Sometimes we wonder what spiritual blessings are. कभी कभार हम लोग अद्भुत तरीके से सोचते हैं कि ये सारी आत्मिक आशीषें क्या है। If there are spiritual blessings, there also should be opposite of spiritual is earthly blessings. तो अगर आत्मिक आशीषें हैं तो उसका विरुद्ध में संसारिक आशीषें भी होती हैं। See, man is made up of body, soul, and spirit. मनुष्य जो है बना हुआ है शरीर, प्राण और आत्मा से। We know what the body is, all that is good for our body, good things to taste, to eat, to see, to hear, to feel. All these are good blessings. तो हम देखते हैं हमारे शरीर में क्या होता है, जो हम खाने का जो टेस्ट मिलता है, हमें अच्छा महसूस होता है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारी आशीषें हैं शरीर के लिए। All the things that we can enjoy. जो कुछ भी चीजों का हम आनंद ले सकते हैं। Then there are blessings which are soulish blessings. और फिर आशीषें आती है प्राण की आशीषें। What is the soul? प्राण क्या है? Soul is our mind, our emotions, and having a strong will. और प्राण क्या है? हमारे जितनी भी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं और हमारा मन है। What is a blessing to the soul? हमारे प्राण के लिए क्या है आशीष? To have a very good intelligence. बहुत अच्छा बुद्धि होना हमारे पास। To have a sharp mind. बहुत ही अच्छा शातिर दिमाग होना। And then about good emotions means we can have a good sense for music. अच्छी भावना यानी कि अच्छा एक भाव होना संगीत की तरफ। We can laugh, we can talk well. हम हंस सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। And then we can take good decisions. और फिर हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं। All these are physical and soulish blessings. तो ये सारी है जो शारीरिक और प्राण की आशीषें हैं। And after this, we all can understand because we were running after all these things. हम ये सब बातें समझ सकते हैं क्योंकि हम इन चीजों के पीछे ही भागते थे। When we get very good food and lot of money and lot of good things of this world, lot of houses and lands and cars and motorcycle, everything, we are very happy. जब हमें अच्छा खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, अच्छी संपत्ति मिलती है, अच्छे सारी चीजें संसार की मिलते हैं, तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। Or when we get a promotion and we get more intelligence and we can think and do well in our studies and do well in our music career and so many other things, and we become
get good positions in this world, then also we consider that a blessing. तो हम देखते हैं अगर हमारी कोई तरक्की होती है, हम जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख पाते हैं और बहुत अच्छे स्थानों में हम पहुँचते हैं, बहुत अच्छा स्तर में हम पहुँच जाते हैं, संगीत में आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में जब ये आशीष मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। When we get all these things, people appreciate us and we also feel very nice. और जब हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग हमें सराहते हैं और हमें जो है बहुत अच्छा लगता है उससे। And all the people also thank God for all these wonderful blessings physically and also the emotionally and mental blessings and intellectual blessings. तो हाँ, सारे लोग जो ये सारी आशीष जिनको मिलती है वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जितने भी जो है शारीरिक और मानसिक और जो भी बुद्धि का जो आशीष परमेश्वर ने दिया है उसके लिए। Good health also is a physical blessing. अच्छी सेहत होना भी एक शारीरिक आशीष है। So in the Old Testament, they were always promised a wonderful blessing physically and emotionally. तो पुराने नियम में हम देखते हैं हमेशा उनको आशीष दी गई थी शारीरिक तौर पे और मन के तौर पे। They could also have lots of children. उनको बहुत सारे संतान भी होते थे तभी। So God promised the Jews a blessing that they could be a blessing in this earth and they will receive the blessing of God in this earth. तो परमेश्वर ने यहूदियों को आशीष दी कि वो इस संसार के लिए एक आशीष देगी और परमेश्वर के द्वारा हमेशा आशीष पाते रहेंगे। So that was the kingdom of God, the kingdom in this earth. तो ये परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर का हमें दिखाता है। Hello, can you hear my voice? Yes, I can hear. Hello. Okay. Yes. So, but when Jesus came, he came with another blessing. परंतु जब यीशु मसीह आए तो वो और एक आशीष के साथ आए। He came with the kingdom of heaven. वो आए स्वर्ग के राज्य को लेकर। He said, repent for the kingdom of heaven is coming soon. उन्होंने कहा कि स्वर्ग राज्य जल्दी आने वाला है इसीलिए पश्चाताप करें। So when we come to God with faith in Jesus Christ, we must expect a heavenly blessing. तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रख के आते हैं तो हमें जो है स्वर्गीय आशीषों की अपेक्षा रखनी है। The earthly blessings, emotional, mental blessings are very minor compared to the spiritual blessings. तो जो सांसारिक आशीष और शारीरिक आशीष हैं स्वर्गीय आशीषों की तुलना में बहुत ही कम है वो। And God wants us to seek after the spiritual blessings. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक आशीषों की खोज में रहें। And what are these spiritual blessings? और ये आत्मिक आशीषें क्या हैं? When we see, that is what the Holy Spirit gives us. तो वही पवित्र आत्मा हमें देता है। And why should we filled? What happens when we are filled with the Holy Spirit? और क्या होता है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं? Then what happens? We are filled with love. तब क्या होता है? हम प्रेम से भर जाते हैं, Peace, शांति से भर जाते हैं, joy, आनंद से भरते हैं। and that is the atmosphere of heaven. तो ये जो वातावरण है ये स्वर्ग का है। Humility in heart. मन में दीनता। In the Old Testament, many of them were so proud, and because they got so much of physical blessings and they had a lot of property, lot of land, they were healthy and they were very intelligent and they became kings. They were very proud. But now, the more God gives us, we become very humble. तो पुराने नियम में देखते हैं जब लोगों को जो सांसारिक आशीष मिलती थी, बहुत सारी धन संपत्ति उनके पास हो जाती थी, जब वो राजा बन जाते थे, ये सारे आशीष पाकर वो घमंडी बन जाते थे। परंतु नए नियम में हम देखते हैं जब हम स्वर्गीय आशीष पाते हैं तो हम जो है और अपने आप को नम्र करते हुए जाना चाहिए। And the spiritual blessings are a million times more important than earthly blessings and emotional blessings. तो जो ये आत्मिक आशीषें हैं वो जो सांसारिक आशीषें और जो शारीरिक आशीषों से 100 गुना बेहतर है। The gospel, the good news, is only for spiritual blessings. और जो शुभ संदेश जो आया है हमें समाचार का वो हमें आत्मिक आशीषों के लिए आया है। Jesus said, seek the kingdom of God first and all the other things, the earthly blessings, will be given to us. यीशु मसीह ने कहा पहले स्वर्ग राज्य की खोज करें, बाकी जितनी भी शारीरिक सांसारिक आशीष हैं वो आपको दिया जाएगा।
that is required for us, that God will give us. और जो कुछ भी हमें चाहिए वो परमेश्वर हमें देंगे। So that Jesus elaborated in Matthew chapter 6, that is food, your clothes, your house to stay, God will give us. तो वही यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में उसका विवरण दिया कि तुम्हें खाना, कपड़ा, मकान जो भी हमारी आवश्यकता है वो हमें देंगे। But God has not promised to give us plenty of very tasty food and lots of very good clothes, like to live like a king, and huge houses and lot of property and lot of children. That God has not promised. तो परमेश्वर ने हमें ये वादा नहीं दिया है कि तुम्हें हमेशा बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा, बहुत राजाओं के जैसा रहने के लिए घर मिलेगा, बहुत सारे धन संपत्ति और बहुत सारे भिन्न-भिन्न जो सांसारिक आशयों मिलेगा, ऐसे परमेश्वर ने कोई वादा नहीं किया है। And God has not promised us that we will be we will always have, we'll always be healthy, and there won't be any diseases in our life. तो परमेश्वर ने ये भी वादा नहीं किया है कि हमारे जीवन में हमेशा हम सेहतमंद रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी, ये भी नहीं कहा है उन्होंने। But He has promised us that sin will not have dominion over our life. परंतु उन्होंने ये वादा हमसे ज़रूर किया है कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। God sometimes uses sicknesses in our life to bring us closer to Him. तो परमेश्वर कभी-कभार हमारे जीवन में बीमारियां लाते हैं ताकि हम जो है उनके और करीब आ सकें इसलिए। The Apostle Paul had a thorn in the flesh, प्रेरित and that made him come closer to Him. प्रेरित पौलुस के जीवन में शरीर में एक कांटा था तो वो उनको परमेश्वर के और करीब लेके आया। All the disciples suffered lot of troubles and problems. There are plenty of troubles and tribulation. तो बहुत सब चेलों ने बहुत सारे कष्ट, मुसीबत और परीक्षाओं का सामना किया उनके जीवन में। So that also God promises. God promises lot of things in heaven, but God promised that you will have lots of troubles and trials when you become a child of God. तो परमेश्वर ने ये भी वादा किया है कि स्वर्ग में आपको बहुत सारे आश्चर्य किएंगे। उसके साथ और भी वादा ये किया हुआ है कि संसार में जीते समय बहुत सारे कष्ट, मुसीबत और परेशानियां होती रहेंगी जीवन में। Because through these troubles and troubles and problems in your home, with people, situations, you can become very spiritually rich and get a lot of spiritual blessings. क्योंकि इस सारे परेशानियों, मुसीबतों, सारी परिस्थितियों के द्वारा आपके घर में लोगों के द्वारा आप जब भी समस्याओं से गुजरते हैं तो आप जो है आत्मिक आश्रय पाते हो, आत्मिकता में और भी धनवान हो जाते हो। All the problems that come in our life is so that we can get more of spiritual blessings. जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं कि हम जो है आत्मिक आशीष और पा सके। These spiritual blessings come from Jesus. और ये आत्मिक आशीष यीशु मसीह से आती हैं। When Jesus lived on this earth also, He had such a lot of problems right from the day He was born till the day He died. तो जब यीशु मसीह संसार में थे तभी उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, उनके जन्म के पहले दिन से लेकर उनके मरण के उस दिन तक। And through all these problems, He grew in wisdom and He became very close to God. तो इन सारे परेशानियों में भी वो जो है ज्ञान में बढ़े और परमेश्वर के और करीब आते गए वो। And all these problems and difficulties are very essential for all of us. तो ये सारी परेशानी और समस्या जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। Because then only God can bless us with spiritual blessings. क्योंकि तभी परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों से आशीष कर सकते हैं। We leave the things of this world and we don't value them, but we value the kingdom of God and we value the things that God values. तो हम इस संसार की चीजों को छोड़कर जो परमेश्वर की चीजें हैं उसको ज्यादा कीमत देंगे और परमेश्वर जिन बातों को कीमत रखते हैं उनको ज्यादा हम मूल्यवान समझेंगे। When we first come to the Lord, we want all these earthly blessings. We are like small children who want toys and good things. But God knows He gives us initially, but God wants better things for us. तो जब हम पहले प्रभु में आते हैं तब हम संसारिक चीजों की आशा रखते हैं, जैसे कि कोई बच्चा कोई खिलौने की आशा रखता है। परमेश्वर को पता है इसलिए परमेश्वर देते भी है, परंतु परमेश्वर जो है इससे उत्तम चीज के लिए हमारे जीवन में वो आशा रखते हैं। He gives us physical healing. वो हमें शारीरिक सेहत देते हैं। He gives us good jobs. वो हमें अच्छे काम देते हैं। He gives us a lot of deliverances from lot of evil people. वो हमें देते हैं सारे जो बुरे लोग हैं उनसे छुटकारा देते हैं। And lots of earthly benefits, and He gives us good abilities to study and good abilities to speak
And all the other things, He gives us good health also. तो वो हमें अच्छी काबिलियत देते हैं बात करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बाकी जितनी भी सांसारिक जो काबिलियत है हमारे जीवन में वो देते हैं। And many times we think that this is the blessing of God over our lives. तो बहुत बार हम ये समझ बैठते बैठते हैं कि ये सारी आशीषें हैं परमेश्वर की हमारे जीवन पर। Yes, it is a blessing, it is not a curse. तो हाँ, ये आशीषें हैं, ये कोई श्राप नहीं है। But it's a very, very small part of the blessing of God. परंतु ये परमेश्वर की आशीषों में से बहुत एक छोटा-सा भाग है। When Jesus went to, I think it was Tyre, there was a person called a Syrophoenician woman whose daughter was demon possessed. तो हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में जो जिनकी जो बेटी थी वो उनको भूत ने बंदी बना लिया था। And when she knew that Jesus had come there, she began to run after him and say that, please heal my daughter, heal my daughter. तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह वहाँ आते हैं तो उसके यीशु मसीह के पास जाकर ये स्त्री कहती है कि मेरी बेटी को चंगा कर दो, चंगा कर दो। She was not a Jew, she was a Gentile. तो वो जो स्त्री थी वो यहूदी नहीं थी, वो एक जाति स्त्री थी। So the disciples also were getting irritated with her because she was troubling them. और जो उनके जो चेले थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि ये स्त्री जो है बार-बार ऐसे बोलती जा रही थी। So when she came to Jesus, Jesus told her that it is not good to take the children's bread and give it to the dogs. तो जब यीशु मसीह वहाँ आए उससे बोलने लगे कि ये अच्छा नहीं कि जो बच्चों के लिए जो रोटी है वो कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। It is almost like a direct insult to her. तो ये उनको एकदम सीधे से उनको निंदा करने वाली बात हो जाती है। The Jews normally considered all the non-Jews as dogs. तो यहूदियों को हम देखते हैं वो लोग जितने भी अन्य जो यहूदी नहीं हैं उनको कुत्ता ही समझते हैं। They thought they always thought that they were the most superior race. तो वो हमेशा से यही सोच के आए हैं कि वो सबसे ऊपर हैं। They were God's people. वो परमेश्वर के जन हैं। But this lady, with all humility, she said, even the dogs eat the crumbs from the table of the children. परंतु हम देखते हैं ये स्त्री और नम्रता के साथ कहने लगती है कि जो कुत्ते हैं वो बच्चों के मेज से गिरे हुए टुकड़े भी वो खाते हैं। Then Jesus said, your faith is great, and immediately her daughter was healed. तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारा जो विश्वास है बहुत ही महान है, तभी तुरंत उसकी जो बेटी है वो चंगी हो जाती है। See, all these things, physical healing, they are like small pieces of crumbs compared to the whole bread. तो हम देखते हैं जो भी ये शारीरिक जो चंगाई है ये सब जो रोटियों के टुकड़े हैं उस रोटी के बड़े हिस्से को तुलने में। The main important part is salvation from sin. तो सबसे महत्वपूर्ण बात है पाप से छुटकारा। And what that means, that is the tremendous blessing that we get victory from anxiety. तो बहुत बढ़िया आशीष है कि हमें जो सारी चिंताओं से जो स्वतंत्रता मिलती है वो। That is the blessing of God. वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। That is the grace of God. वो परमेश्वर की कृपा है। If we have more of victory over anxiety and peace in our life in every situation, that is the blessing of God upon a person's life, because that blessing has come from heaven. जब हमें सारी परिस्थितियों में सारे बातों में इस चिंता के ऊपर से एक जय मिलता है तो ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ बहुत बड़ा एक आशीष रहता है। If you have victory over your anger and irritation, that is a blessing from God. अगर आपको जय मिला है आपके गुस्से के ऊपर, आपकी चिड़चिड़ाहट के ऊपर, तो ये परमेश्वर से आने वाली बहुत बड़ी आशीष है। Spiritual self-control is a blessing from God. संयम रखना भी परमेश्वर के द्वारा आया हुआ आशीष है। So many believers do not have self-control because they are not blessed by God. There's no grace over their life. तो बहुत सारे विश्वासी के जीवन में ये संयम नहीं है क्योंकि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में नहीं है इसलिए। And God gives His grace only to the humble people. और परमेश्वर उनकी कृपा सिर्फ जो नम्र लोग हैं उन्हीं को देते हैं। And humble and a quiet person is a blessing from God. एक नम्र और शांत व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आश्रित है। Because God is humble and quiet. क्योंकि परमेश्वर जो है नम्र है और शांत है।
So that is the nature of God. तो ये जो स्वभाव है वो परमेश्वर का है। Hello. Yes, brother, I can hear you. See, I think I'll change my. You can hear me clearly? Yes, I can clearly hear you. Okay. Okay. So, so we must always seek for these spiritual blessings. तो हमें हमेशा इस आत्मिक आशीष की खोज में रहना है। But most believers are seeking for earthly blessings. परंतु बहुत सारे विश्वासी जो हैं सांसारिक आशीष की खोज में रहते हैं। Just like the people of this world. जैसे ही संसार के लोगों के जैसा। They're happy when they get good food and good clothes and they are healthy and they get healed from sicknesses and they get good job, promotion, bonus, and their children are passing well, start first in class. All these things are earthly blessings. तो हम देखते हैं जब भी सांसारिक आशीष जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, जब उनके बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, अच्छा तरक्की मिलती है, उनको बहुत सारी संसार की आशीष मिलती है, जब वो बहुत ही खुश हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। Yeah, God has enabled my child to go to America. I got a job in America, a job in the Gulf. Now my salary is 10 times what I'm earning now. They think that is a tremendous blessing from God. तो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो अमेरिका में गया है, उसकी जो तनख्वाह है 10 गुना से भी बढ़कर है। ये सब कहकर वो परमेश्वर और बहुत खुश हो जाते हैं, कहते वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा आई हुई बहुत बड़ी आशीष है। We were so poor. Now my son has got a good job. Now we have got a nice flat. Now we have got a lot of good clothes. We can travel here and there, and we are healthy also now. They are all earthly blessings. तो वो बोलते हैं कि हम गरीब थे परंतु अभी मेरे बेटे के पास अच्छा एक नौकरी है, हमें अच्छा घर है, हम यहाँ-वहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी जो उनको मिलती हैं वो सांसारिक आशीषें हैं। They have not understood what the kingdom of God, why Jesus came into this world. तो वो ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। When we read the Bible, the Holy Spirit wants us to come closer to God. जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें हमेशा ये कहता है कि हम परमेश्वर के और करीब आएं। When we see the Matthew chapter 5, 6, 7, in the first it starts, blessed are the people who are humble in heart. जैसे कि मत्ती का किताब 5, 6, 7 अध्याय जब पढ़ते हैं वो शुरू होता है ये लिखते हुए कि धन्य है जो मन में नम्र है। Matthew chapter 5 we will see, we'll turn. मत्ती 5 अध्याय में देखेंगे। These are the spiritual blessings. तो ये सारी जो है आत्मिक आशीषें हैं। He began to open his mouth and began to teach his disciples. उन्होंने अपना मुंह खोलकर वो अपने चेलों को उपदेश देने लगे। He said, blessed are the poor in spirit. उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। Blessed are those who mourn. धन्य है वे जो शोक करते हैं। This is the first time people are hearing that people who mourn are blessed. तो पहली बार लोग ये सुन रहे हैं कि जो शोक करते हैं वो धन्य हैं। When we feel sorry and we are humble and repent and mourn, that is a tremendous blessing that we must say that such a person has come very close to God. जब कोई शोक मनाता है, अपने आप को नम्र करता है, रोता है, तो हमें कहना चाहिए ये बहुत बड़ी आशीष है कि ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के इतने करीब आ चुका है अभी। And so blessed are the gentle. और यहाँ पे लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं। Have you seen a gentle person or a meek, humble man? So that is a wonderful spiritual blessing. क्या आपने कोई नम्र दीन व्यक्ति को देखा है तो वही सबसे अनोखा आत्मिक आशीष है उनके लिए। Blessed are those who hunger and thirst for doing that what is right. और धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं। No, I only want to do what is right in the sight of God in my life. मुझे सिर्फ वही करना है जो परमेश्वर की नजरों के सामने सही है। That is a wonderful spiritual blessing because that is the nature of God. वही अद्भुत परमेश्वर की आत्मिक आशीष है क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। Blessed are the merciful. और जो धन्य है वे जो दयावंत हैं। Yesterday we saw about judging. Brother was saying, blessed are people who do not judge anybody but always are willing to forgive and giving the benefit of doubt to others. तो कल जैसे हमने सुना भाई कह रहे थे कि न्याय नहीं करना है, तो न्याय नहीं करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही धन्य है क्योंकि वो हमेशा दूसरों को आशीष देता है, सभी के लिए भलाई देता है। वो They are always forgiving people. वो हमेशा सभी को क्षमा करते हैं। They are not remembering the faults of other people. वो किसी की गलतियों को याद नहीं रखते।
And then says, blessed, there is a blessing in being pure in heart. फिर लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। What does it mean of pure in heart? Their only one desire in this world is to please God. वो शुद्ध मन का अर्थ क्या है? उनके जीवन में यही इच्छा है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करें। They don't want to please their mother and their father and their uncles and aunties. They only want to please God in their life. तो वो जो है अपने माता-पिता या मामा-मामी को प्रसन्न नहीं करना चाहते, उनके जीवन में सिर्फ़ उनके मन में ये है कि उन्हें परमेश्वर को सिर्फ़ प्रसन्न करना है। And that is the wonderful blessing, वो सबसे अद्भुत आशीष है, because that is the nature of Jesus. क्योंकि ये जो है यीशु मसीह का स्वभाव है। Another good blessing is to be a peacemaker. और दूसरा जो अच्छी आशीष है वो है जो मेल कराने वाले। Always, never fighting with anybody, always willing to say sorry and willing to make up in every situation. कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने वाले, हमेशा क्षमा माँगने वाले, सभी को मेल-जोल करके एक साथ रखने वाले। No gossiping, no backbiting, कोई गपशप नहीं, कोई की पीठ पीछे बात करना नहीं, always encouraging everybody. सभी को हमेशा प्रोत्साहन देने वाले। Another blessing is verse 10, it says, blessed are those who are persecuted for doing that is right. और फिर 10 वचन में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Yes, whenever we are harassed by people, harassed by our relatives, when we do the right thing, then the Lord says, that is a tremendous spiritual blessing. और जब भी हम कोई सही चीज करते हैं और लोग हमें सताते हैं, तो परमेश्वर हमें कहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एक आशीष है। So when we want the spiritual blessings of God, God will send all sorts of people to harass us. और जब हमें ये परमेश्वर की आशीषें चाहिए होती है, तो परमेश्वर बहुत सारे लोगों को हमें सताने के लिए भेजते हैं। Because all those who go to the kingdom of heaven are getting lot of harassment. क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के इस राज्य में जाते हैं, उनको बहुत सारे सतावटें मिलती हैं। And that is a wonderful blessing indeed. तो ये जो है बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए। Because all the prophets and all the saints and all the so many martyrs, they were so much harassed and persecuted. जितने भी नबी थे, जितने भी संत हैं, जितने भी जो शहीद हैं, उनको बहुत सताया गया, उनको मार डाला गया। And verse 11 says, blessed are those when men cast insults on you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely on account of me. उसका 11 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। Because we are Christians, people will insult. You're sure you will definitely get a lot of insults and harassment, and you will be persecuted. तो हम मसीह हैं, तो ये होगा ही कि निश्चय तुम जो है लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत सताएंगे और सबके सामने तुम्हें अपमानित और सताया जाएगा। And that is a tremendous blessing. और ये आपके लिए बहुत बड़ी एक आशीष है। It is a wonderful spiritual blessing. ये बहुत ही अनोखा आत्मिक आशीष है। And verse 12, when you get all these things, he said, rejoice, verse 12, and be glad, for your reward in heaven is great. और 12 वचन लिखा है, जब कोई ये सब सारी बातें आपके जीवन में होती है, तो आपको क्या करना, आनंद और मग्न होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। Because of this, they persecuted the prophets who were before you. क्योंकि इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से उनको सताया था। See, the prophets are going to get a tremendous reward because they were killed and they were harassed because they spoke the truth. भविष्यवक्ताएं जो है बहुत बड़ा इनाम पाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई कही, तो उनको बहुत सताया गया, उनको मार डाला गया उनके जीवन के द्वारा। The more you suffer, the better, the greater is the spiritual blessing. जितना आप दुख उठाते हो, उतना ही अधिक होगा, अधिक आपको जो आत्मिक आशीषें जो है आपके जीवन में आप पाओगे। They become closer to God. आप जो है परमेश्वर के बहुत करीब आ जाओगे। We see the example of Stephen. हम देखते हैं उदाहरण स्टेफेनोस का। Stephen, when he spoke the truth to all these Jewish priests and Pharisees, they got so angry on him that they dragged him and threw stones and began to kill him. तो हम देखते हैं जब स्टेफानोस सच्चाई की बातें मुंह खोलकर बोलते हैं यहूदियों को, और जितने भी फरीसी लोगों को जब बोलते हैं सच्ची बातें, तो वो क्या करते हैं, क्रोध में आकर उसको घसीट कर, पत्थर मार कर उसको फेंकते हैं, पथराव कर। And we read in Acts chapter 7. हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय में, verse 55. 55।
And Stephen, being full of the Holy Spirit, he gazed intently into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. वहां पे लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर। See, when we speak the truth, then we become full of the Holy Spirit. कि जब हम सच्ची बातें बोलते हैं तो हम जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। We only want to live for the glory of God. हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहते हैं। फिर We don't want to please people and become diplomatic or political. तो हम जो है लोगों को प्रसन्न करके एक पॉलिटिकल स्तर पर नहीं आना चाहते। When he looked up to heaven, he saw Jesus. जब वो अपने सर उठाकर देखते हैं तो वो यीशु मसीह को देखते हैं। He was standing on the right hand of God. He saw Jesus standing on the right hand of God. उन्होंने देखा कि यीशु जो है परमेश्वर की दाहिनी ओर वो खड़े हुए थे। Normally, Jesus sitting on the right hand of God, साधारण तौर पर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठते हैं, but now he was standing परंतु अब जो है वो खड़े हैं। because Stephen was going to die and leave this earth, and Jesus was going to welcome him personally to come to heaven. क्योंकि स्टेफनस जो है अभी मरने वाले थे, इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले थे। यीशु मसीह जो है व्यक्तिगत रूप में खड़ा होकर उन्हें स्वागत कर रहे थे स्वर्ग में जाने के लिए। Verse 59, because he saw Jesus standing, they went on stoning him. He says in verse 59, Stephen, as he called upon the Lord and said, Lord Jesus, receive my spirit. 59 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे ही ये पथराव कर रहे थे सब लोग मिलकर, और वे स्तेफानोस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। What a wonderful way to go to heaven. कितनी अनोखी राह है स्वर्ग में जाने का। But he suffered and suffered. परंतु उन्होंने बहुत सारा क्लेश उठाया। Suppose somebody throws a stone on your head, how much it pains you? कल्पना करो कि कोई आपके सर पे कोई पत्थर मारता है तो आपको कितना दर्द होगा तभी। More than 100 people are throwing stones on you. How much it must have hurt, bleeding, stones on your face, on your eyes, on your teeth, on your head, everywhere, on your hand. And how much he suffered. तो आप ये कल्पना कीजिए कि 100 से अधिक लोग जो है पथराव कर रहे थे उनके सर पर, पैर पर, पेट पर, हर जगह, और कितना खून बहा होगा, कितना दर्द में से वो गुजरते होंगे तभी। The Lord Jesus was so happy with them that he stood up in heaven, said, come, welcome. You have followed me. I have suffered. You also have suffered for my sake. तो हम देखते हैं यीशु मसीह खुश होकर उनके लिए खड़ा होते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना दुख उठाया और तुम मेरे पीछे करके तुमने भी इतना दुख उठाया, तो स्वर्ग में आ जाओ करके खड़े होते हैं उनके लिए। And they will be known as great in the kingdom of God. और वो जो है परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएंगे। Those who suffer much for the Lord get tremendous amount of spiritual blessing. जो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा क्लेश उठाते हैं उनको बहुत ज्यादा आत्मिक आशीष मिलती हैं। That is why when we read stories of godly men in the Bible and out of the Bible, then we also get encouraged. जब हम धार्मिक लोगों के विषय में, भक्ति से भरे हुए लोगों के विषय में जब बाइबल में पढ़ते हैं तो हम भी बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं उनसे। That we can go through all our troubles with joy in our life. ताकि हम भी इन सारी समस्या के द्वारा गुजर सकते हैं हमारे जीवन में एक आनंद के साथ। Because then we also get so much of blessing over our life. क्योंकि हमें भी हमारे जीवन के ऊपर बहुत सारा आशीष हम भी पा सकते हैं। And then we can bless others also. और फिर हम दूसरों को भी आशीष कर सकते हैं। And our spiritual value also will increase. और फिर जो हमारा जो आत्मिक मूल्य है वो भी बढ़ जाता है। But if we run after all these earthly things and we want only peaceable life, we will compromise with people, and we run after riches and money and good clothes and lot of high education, then we find that our spiritual lives will go down. अगर हम इन सारे सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे संपत्ति और सारे लोगों से समझौता कर कर एक शांति का जीवन के लिए हम भागते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारा आत्मिक आशीष और आत्मिक जो बातें हैं उस बहुत ज्यादा घट जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। Our main aim should be the kingdom of God. हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर का राज्य। And we can work hard for the things of this earth, but we are not really attached to it. हमें संसार की चीजों के लिए बहुत प्रयत्न तो कर सकते हैं, परंतु हमें उससे जुड़े हुए नहीं रहना है।
They are very small things for us. वो हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं। If they are gone, it's okay. As Job said, God has given and God has taken away. अगर ये सब कुछ चला जाता है तो ठीक है, क्योंकि जैसे अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले भी लिया। But he said, Lord, but I have you. You have not gone away from me. और उसने कहा कि प्रभु आप मेरे पास हो, आप मुझसे दूर नहीं हुए हो। Because Jesus has promised that he will never leave us, only forsake us. क्योंकि यीशु मसीह ने ये वादा हमसे किया है कि वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे भी नहीं। The Lord, other things may come and go बाकी सारी चीजें आएंगी और जाएंगी, because they are earthly things. क्योंकि वो संसारिक चीजें हैं। When we die, we have to leave all these things behind. जब हम मरते हैं तो इन सारी चीजों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। All our bank balance, जितने भी हमें बैंक में जो जमा किया है, all our clothes, हमारे सारे कपड़े, all our certificates, degrees, और जितने भी हमने सर्टिफिकेट लिया है, सभी, all our talents, हमारी जितनी भी काबिलियत है, we have to leave behind. हमें इन सब चीजों को पीछे छोड़ना ही है। And the only thing that can last is the spiritual blessings, that is the nature of God we saw. That only is there, can be valuable for all eternity. और जो कुछ रह जाएगी वो सिर्फ आत्मिक आश्रय, परमेश्वर का जो स्वभाव है, ये हमेशा अनंत काल के लिए सिर्फ यही चीजें बहुत ही मूल्यवान ठहरेंगी। We see in the book of Luke, Luke chapter 12, हम देखते हैं लूका की किताब 12 अध्याय में verse 19, it says, 19 वचन। this is the man who was very rich and he wanted to become more and more rich. So ये he said, yeah, तो ये व्यक्ति वो जो धनवान था और वो और संपत्ति से भरा हुआ होना चाहता था। this is the aim and ambition of all worldly people and all worldly Christians. यही मकसद रहता है, उद्देश्य रहता है सारे संसारिक लोगों का और संसारिक विश्वासियों का। He was told, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. यहाँ पे लिखा है, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। Oh, he's telling, I've got lot, my bank balance is very good. I've got a lot of income and I've got lots of houses. I've got no tension, no worries. Just enjoy life. तो वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत जमा है बैंक में, मेरे पास बहुत घरें हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं मेरे पास है, मुझे अभी किसी चीज की चिंता नहीं है, अभी सिर्फ आनंद मनाना है मुझे। But what does God say to him? Verse 20. परमेश्वर उसे क्या कहते हैं 20 वाक्य में? You fool! हे मूर्ख! This very night your soul is required of you. Now who will own all that you have prepared? यहाँ लिखा, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? We don't know when we are going to die. उसको पता नहीं है कि कब मरने वाला है वो। Many people think they are going to die at 85 and 90 years old. They want to live. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं 85 या 89 साल तक, तब तक वो जीवित रहने वाले, ऐसे सोचते हैं। But many people die when they are young only. परंतु बहुत सारे लोग जो है मरते हैं जवानी के दिनों में ही, In 20s, 30s, 40s. 30, 30 या 40 की उम्र के लगभग के पास। That God has decided. वो परमेश्वर ने उस बातों को निश्चित किया है। Already God has decided when the person is going to die. परमेश्वर ने पहले से ही इस बात का निश्चय कर रखा है कि कब कौन व्यक्ति मरने वाला है। This time that we live in this world is a very short time. जो वक्त हम इस संसार में गुजार रहे हैं बहुत ही कम समय है वो। So what we have to do in this short time, we have to prepare for the kingdom of God. We have to prepare for all eternity. तो इस कम वक्त में हमें क्या करना चाहिए संसार में परमेश्वर के राज्य के लिए और अनंत जीवन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, So that we will get spiritual blessings. ताकि हमें आत्मिक आशीष मिल सके। These are the true riches of God. ये सच्ची धन है परमेश्वर का। So that is why in verse 21 it says, इसीलिए 21 वचन में कहता है, so is the man who lays up treasure for himself and is not rich towards God. ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। All the people have tremendous amount of wealth and health, and all these people very healthy bodies, and they are not rich towards God. तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सेहतमंद शरीर है, परंतु वो परमेश्वर के लिए धनी नहीं है।
But God has sent us into this world so that we get spiritual riches. परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है ताकि हम जो है आत्मिक धन पा सके। Most people in this world, without Christ, you don't become rich at all. अगर प्रभु के बिना इस संसार के कोई भी लोग जो है वो धनवान नहीं बन सकते। The first time you become spiritually rich is when you come to Christ. पहली बार आप आत्मिक तौर पे धनवान हो जाते हैं जब आप प्रभु की यीशु मसीह के पास आते हो। You become a citizen of heaven. आप जो है स्वर्ग के नागरिक बन जाते हो। And then when you start obeying God and living for Him, then you start becoming more and more rich. और जब आप परमेश्वर की बातों को मानकर उनके इच्छा से जीते हो तो और जो है आप धनवान हो जाते हो। We become rich in love and rich in peace and rich in joy and patience. आप धनवान हो जाते हो शांति, आनंद, प्रेम और धीरज में। And that's why we become more like God, because God is very rich. और हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर बहुत ही धनवान है। We cannot carry our gold and silver and money and bank balance into heaven. हम जो है हमारे चांदी, सोना और जो पैसे जमा खाता जो बैंक में है उसे हम स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। We get all this money so that we can live in this world. तो ये सारे पैसे हमें मिलते हैं ताकि इस दुनिया में हम जी सके। And we can do good works. और हम अच्छे कामों को कर सके। Not to live a selfish life, but to live an unselfish life like Jesus. एक स्वार्थी जीवन जीना नहीं, निस्वार्थ जीवन जीना यीशु मसीह के समान। We can tell about the kingdom of God to others and tell about Jesus Christ to others. हम परमेश्वर के राज्य के बारे में और यीशु मसीह के बारे में सभी को कह सकते हैं। And because of that, you'll be persecuted. और उसकी वजह से जो है आपको जो है सतावटें होंगी। But our riches will keep on increasing because those who suffer for more for God will get more and more spiritual riches. और हमारा धन जो है बढ़ता जाएगा क्योंकि जो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा क्लेश उठाते हैं उनका जो आत्मिक धन है वो और बढ़ता चला जाता है। Jesus said, the more rich you get, more a person becomes more and more rich, the more and more difficult it is to enter the kingdom of God. तो यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति और धनवान हो जाता है उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। Because he thinks more and more about his riches and more about his intelligence and achievements. क्योंकि वो और उसके धन के बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में, उसकी जो बुद्धि के बारे में सोचने लगता है। इसलिए That is why very few kings and authorities and big prime ministers and presidents enter the kingdom of God. इसीलिए बहुत ही कम जो बहुत ऊंचे स्थान में रहने वाले या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या अधिकारी कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाता है। Because all the time they're thinking about their money and their name and their fame. क्योंकि हमेशा से ही उनके पैसों के बारे में, नाम के बारे में, मशहूरता के बारे में ही वो सोचते रहते हैं। They are not thinking about the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा की कोई सोच नहीं रखते। They have no time. उनके पास ऐसे समय ही नहीं है। All the time they're thinking how to become great and how to become more powerful and how to make more money. और हमेशा वो सोचते हैं कि कैसे अधिकार को और ज्यादा पाया जाए, कैसे नाम कमाया जाए, कैसे ज्यादा पैसे पाया जाए। In English, for small children in KG class, they teach a song called "Sing a Song of Sixpence." तो अंग्रेजी में जो केजी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक गीत सिखाया जाता है। What is this, brother? I don't understand. Sing a song of sixpence. I don't know they teach them now, but we used to learn. In one of the verses it says, "The king was in his counting house, counting all his money." तो एक लाइन में ऐसे लिखा हुआ है कि जो राजा है उसका राजा रहता है, उसके घर में रहता है, उसका जो पैसा है वो गिनते बैठता है। See, he has got lots of money, but he likes to keep on counting the money. तो उसके पास बहुत पैसा है परंतु उसको बहुत पसंद है कि वो पैसों को वो गिनते हुए बैठे। He likes to look at the bank balance. यारे मेरे बैंक बैलेंस में इतना है, that is है. I'm feeling so happy because I'm getting such a lot of money. तो वो बहुत ही खुश होकर ये कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास बैंक में इतना जमा है, इतना पैसा मेरे पास है इसलिए। They are meditating more about their money. तो वो मनन करते हैं उनके पैसों के विषय को लेकर। And as they say in English, money is on their mind and mind is on their money. जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, पैसा उनके दिमाग में है और दिमाग उनका पैसे में है। So that is why they can have no time to think about the kingdom of God, or think about God at all. तो इसीलिए उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में या परमेश्वर के बारे में सोचने का समय ही नहीं रहता उनके पास। And most of them go to hell. और उसमें से बहुत सारे लोग जो है नरक में ही जाते हैं। And most rich people and talented people among Christians also, they have become very spiritual poor because they don't think about God and meditate upon God.
और जितने भी धनवान और काबिलियत से भरे हुए मसीही भी जो है प्रभु में है, वो भी जो है आत्मिक आशीष को नहीं पाते, क्योंकि वो संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं, ना कि परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के राज्य के That बारे is why the Holy Spirit wants us to take us away from the earthly mindedness to heavenly mindedness. में। इसलिए पवित्र आत्मा जो है हमें इस सांसारिक चीज़ों में जो हमारा मन जो है वो उसको हटाकर हमें स्वर्गीय चीज़ों में मन लगाने के लिए हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। Jesus said, don't worry about your clothes, having good clothes and having eating good food and being good big house and having a better job. God will give it to you in his own time. तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कभी चिंता मत करो कि अच्छा खाने के लिए, अच्छा काम के लिए या घर बनाने के लिए, परमेश्वर जो कुछ भी ये चीज़ें हैं आपको उचित समय पर आपको ये सारी चीज़ें देंगे। Don't keep on worrying about the future. हमेशा भविष्य के बारे में हमेशा चिंता करते ना रहें। If you want to think about so that you can have enough time to think about Jesus and obey him. तो आपके पास समय है तो आप सोचिए कि हमेशा यीशु मसीह के बारे में और उनकी जो भी बातें हैं उसे मानने के लिए सोचते रहें। Because we have a very short time to live in this world. क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है इस संसार में जीने के लिए। We have no time to keep on fooling around here and there. हमारे पास कोई भी समय नहीं है कि हम बेकार में यहाँ-वहाँ जाते रहें। So many believers, Christians, even our church, keep on wasting their time doing all unnecessary things. बहुत सारे विश्वासी हमारे कलीसिया में भी ऐसे हैं जो बेकार की बातों में अपना समय व्यतीत कर बर्बाद करते रहते हैं। They're getting busy with all the worldly things and they are worrying, but because of that, they have no time to think about God, no time to read the Word of God. इस संसार की चीजों पे समय व्यतीत करते हैं, उसके बारे में बहुत सारा समय चिंता करते रहते हैं। इसके लिए वो परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए, परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता। But when our heart cries out to God, "Oh Lord, please save me," then the Holy Spirit will show us the glory of God. जब हमारे हृदय से हम पुकारेंगे कि प्रभु मुझे बचाओ, तो पवित्र आत्मा जो है हमें परमेश्वर की महिमा को दिखाएंगे। And 2 Corinthians chapter 3 says, He will change our lives from earthly things to heavenly things and make us more like Jesus. जैसे कि दूसरा कुरिन्थी तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि वो हमारे मन को बदल देंगे और स्वर्गीय चीजों से हटकर हमारा मन जो है स्वर्गीय चीजों पर हमेशा लगा रहेगा। फिर Who is the richest person in heaven? स्वर्ग में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? It is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। He is known as the King of Kings. वो उनको राजा का राजा माना जाता है। And who are the kings? और वो राजा कौन है? All the children of God are the kings. और जितने भी परमेश्वर की संतान है सारे राजा हैं। You can call yourself king. और आप अपने आप को राजा कह सकते हैं। I call myself King George. मैं अपने आप को राजा जॉर्ज कहता हूँ। And Jesus is my king. और यीशु मसीह मेरे राजा हैं। And I have to become like my Jesus. और मुझे मेरे यीशु के समान होना है। And that's how we become richer and more richer spiritually. तो ऐसे ही हम और आत्मिकता में धनवान हो सकते हैं। All my earthly qualifications are of no use in heaven. और जितने भी मेरे जो सांसारिक पढ़ाई लिखाई है स्वर्ग में उसका कोई भी मूल्य नहीं है। All my money has got no use in heaven. मेरा जितना भी पैसा है उसका कोई भी लाभ नहीं है स्वर्ग में। All my house and property have got no use in heaven. मेरे जितने भी घर है, जितनी भी मेरी संपत्ति है, वो स्वर्ग में उसका कोई उपयोग नहीं। The Apostle Paul knew that and he said, all this, the earthly things are just like rubbish. प्रेरित पौलुस ये सारी चीजों को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि संसारिक चीजें जो है सब कचरे के समान है। And all the heavenly things are like spiritual riches. और जितनी भी स्वर्ग की चीजें हैं वो आत्मिक धन है। So how we are faithful to God in our different trials makes us spiritually rich. और जैसे हम परमेश्वर की और हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में, परीक्षाओं में विश्वास योग्य रहते हैं, वो हमें आत्मिकता में धनवान बनाता है। Many poor and ordinary Christians are very spiritually rich. जितने भी साधारण गरीब जन है वो बहुत ही आत्मिकता में धनवान है। Because they have been faithful to God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरते हैं इसलिए। Many Christian leaders and people who do a lot of ministry are spiritually poor. जितने भी मसीही अगुवे हैं और जो बहुत सारी सेवकाई करते हैं वो आत्मिकता में बहुत ही गरीब हैं। Why? क्यों? Because they want only earthly benefit and earthly honor. क्योंकि उनको सिर्फ सांसारिक आदर और सांसारिक लाभ ही चाहिए इसलिए। Because of that, they become very spiritually poor in heaven. इसीलिए वो स्वर्ग में जो है आत्मिकता में बहुत ही गरीब ठहरते हैं।
And the Lord Jesus should not say that you have become a fool. और यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि तुम जो है मूर्ख बन गए हो। You are running after earthly honors and pleasing people and pleasing elders and all these things. You become like a spiritual fool. और आप जो है सांसारिक आदर के लिए और लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अगुओं को प्रसन्न करने के लिए फिरते हो, तुम जो है आत्मिक मूर्ख बन चुके हो। You want power and position in the church. आपको अधिकार चाहिए रहता है, स्थान चाहिए रहता है कलीसिया में। That is spiritual foolishness. वो जो है आत्मिक मूर्खता है। Because you want to become poorer and poorer in heaven. क्योंकि आप जो है स्वर्ग में और गरीब बनते जा रहे हो। And you want to become richer and richer in this earth. और आप ये संसार में और धनवान बनना चाहते हो। And you want to become more and more famous in this earth. और आप चाहते हो कि इस संसार में और बहुत ज़्यादा मशहूर बन जाएँ। You want to have a big name among Christians. आप मसीही लोगों के बीच में बड़ा नाम कमाना चाहते हो। That is utter foolishness. वो सबसे बड़ी मूर्खता है। That is what is the Holy Spirit is speaking to you and me, brothers and sisters. यही पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं भाइयों बहनों। And Jesus wants us, he said, Luke 12, I want you to be spiritually rich. जैसे कि परमेश्वर जी कहते हैं लूका की किताब 12 अध्याय में, मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मिकता में धनवान हो जाओ। So let us pray, brothers and sisters. Bow down our heads and pray. प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे कि हम इस सांसारिक चीज के पीछे हम भागे नहीं प्रभु जी। हम तो बिल्कुल मूर्ख हो गए, इतना फुलिश रहेंगे लॉर्ड। हम अभी तक कई चीज के पीछे भागे प्रभु। प्रभु हमको बुद्धि दे दे, पवित्र आत्मा से हमको ज्योति दे दे कि आपकी जो महिमा है, आपकी जो धन है, सच्चे धन, उसके पीछे जाओ प्रभु। एक दिन हमको ये संसार से निकलना है प्रभु, कभी है हमको मालूम नहीं है। आपको कितना दिन रखा है प्रभु इस पृथ्वी पे, आप ही जानते हैं प्रभु जी। तब तक लॉर्ड हमको एक दिन लेके आपका बुद्धि, आपका विजडम हमको खोजना है प्रभु जी। लॉर्ड हमको आदमी लोगों को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को प्लीज नहीं करना, लेकिन आपको ही प्रसन्न करना है प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हमारा आंख खोले प्रभु जी, और जो भी गलत चीज हम कर रहे हैं प्रभु, हम ये बंद करके आपको प्रसन्न करने के लिए हम कोशिश करें प्रभु। हमको ये मनन करने के लिए हमारा हृदय में ये वचन डाल दे प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु हमसे बात किया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में पूरा का आशीष कलीसिया पे होए और आपका नाम का महिमा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।